Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to Unihari English classes again. So today I'm just going to discuss about the next part of a verb. So in this video, in this part 2 of verb, I will try to cover the auxiliary verb and types of auxiliary verb. It means it is the last video of the verb. Okay, so you are just requested to please give attention and just go continue for watching this video, right? So start. So students see auxiliary verb. ओके ये सहायक क्रिया होता क्या है? An auxiliary verb is called supporting verb or helping verb because it is used to change the meaning of tense and form of a sentence. Okay, see, we are going. Okay, we are going to are. They have doll, right? Have. We must go, right? Must. Now we may see kinds of auxiliary verb. First, primary auxiliary verb, and second, modal auxiliary verb. Okay, see, auxiliary verb होता क्या है? An auxiliary verb is called supporting verb or helping verb. एक auxiliary verb होता है supporting verb इसको कहते हैं और helping verb भी कहते हैं. इसका प्रयोग होता है मेन वर्ब को मदद करने के लिए ताकि उसका मीनिंग को बदले और सेंटेंस का फॉर्मेशंस को अलग करे, राइट? An auxiliary verb is called supporting verb or helping verb because it is used to change the meaning of tense and form of a sentence is called auxiliary verb, right? We are going, are. They have doll, have. We must go, must, right? Now we may see kinds of auxiliary verb. There are two types of supporting verb. One is primary auxiliary verb and second is modal auxiliary verb. Okay, we may see like this. Suppose this is auxiliary verb, right? So then this one is primary auxiliary verbs, right? We can divide into three ways. One is action or like this, present, past, future. Okay, present is, am, are. Past was, were. Future will, shall, right? Then do, does. Here did, here nothing. Got it? Here have or has. Here had. Here nothing will be there. It means this is a position. This is possession. Sorry. This is action. And this one पोजीशन. प्राइमरी एक्जुलरली वर्ब देखिए कितना होता है, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में और फ्यूचर फॉर्म में. प्रेजेंट फॉर्म पोजीशन इज, एम, आर, वाज, वर, फ्यूचर में विल, शैल.
एक्शन में डू डज डिड हियर नथिंग विल बी देयर, एंड पोजीशन में हैव हैज एंड द हैड विल बी देयर फॉर द प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। एक होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब, राइट, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। इसमें हम इसको बांट दिए, दो रूप में कर दिए, एक कर देते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब और दूसरा कर देते हैं मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब, राइट। मॉडल में चला जाएगा विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, फिर आ जाएगा इसमें यूज टू, और मार्जिनल में जाएगा नीड और आएगा डेयर, राइट। विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, यूज टू, एंड हियर विल बी, शुड, वुड, राइट। अब हम देखते हैं कि एक्सुलरी वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, एक होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसका तीन फॉर्म में कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में इज, एम, आर, वाज, वर, पास्ट, विल, शैल, फ्यूचर। डू, डज, प्रेजेंट, डिड, पास्ट, एंड हियर नथिंग विल बी देयर। हैव, हैज, प्रेजेंट, हैड आपका जाएगा पास्ट में। आप इसे मॉडल एक्सुलरी वर्ब देखेंगे, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, यूज टू, शैल, सॉरी, शुड, वुड। अब इसको देखेंगे मार्जिनल मॉडल वर्ब में नीड और डेयर को इसलिए अलग कर दिए क्योंकि इसका जो यूजेज होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है मेन वर्ब के अनुसार से, एक होता है मॉडल वर्ब के अनुसार से, इसीलिए इसे मार्जिनल मॉडल में रखा जाता है। नाउ वी कैन सी देयर आर टोटल 26 auxiliary verb in English। ओके, इंग्लिश लैंग्वेजेस में हम टोटल 26 वर्ब्स को देखेंगे, टोटल 26 auxiliary verb को देखेंगे, जिसमें से आप देखेंगे कि विल, शैल फ्यूचर में भी है और विल, शैल मॉडल में भी। आप यहां से भी हटा सकते हैं या फिर यहां से हटाएं, फिर आपके पास टोटल बचेंगे 24। ओके, तो an auxiliary verb is called supporting verb or helping verb because it is used to change the meaning of a tense and form of a sentence is called auxiliary verb, right? Kinds of auxiliary verb, primary auxiliary verb और modal auxiliary verb। Here हमने देखा कि auxiliary verb दो प्रकार में कर दिए, प्राइमरी में और मॉडल में। प्राइमरी का तीन फॉर्मेशन कर दिया हूं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और मॉडल का होता है मार्जिनल मॉडल्स auxiliary verb एंड होता है मार्जिनल मॉडल्स verb। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल तरीके से कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होता क्या है और मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या होता है। So here we have to start with primary auxiliary verb and modal auxiliary verb, right? So primary auxiliary verb is that which is used to help the main verb to change the tense. Okay? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होता क्या है कि जिसका प्रयोग होता है सेंटेंस में यूज करके उसके टेंस के फॉर्मेशंस को अलग करना और टेंस के मीनिंग को रूपांतरित करना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। जस्ट लाइक वी हैव डन दिस वर्क, हम लोगों ने इस काम को किया है। तो यहाँ पे जो हैव है वो डन को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, उसके मीनिंग को बदलने के लिए दे विल गो देयर। विल जब लगा तो उसके टेंस को अलग कर दिया। वही चीज लिखा कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब इज दैट व्हिच इज यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब टू चेंज द टेंस। नाउ वी मे सी दैट इज द मॉडल एक्सुलरी वर्ब, राइट। मॉडल एक्सुलरी वर्ब इज दैट व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द मोड ऑफ एन एक्शन। मॉडल्स में होता क्या है कि अक्सर हम कभी विल लगाते हैं, सेल लगाते हैं, मे लगाते हैं, माइट लगाते हैं, कैन लगाते हैं, कुड लगाते हैं, वुड लगाते हैं, शुड लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं, डेयर लगाते हैं, नीड लगाते हैं, यूज टू लगाते हैं, ought to लगाते हैं। तो हम करते क्या है कि अगर विल लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है आई शैल गो, मैं जाऊंगा, राइट। अभी हमने यहाँ पे सेल लगाया, अगर मैं लगाया आई मे गो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बदल गया। आई मे गो, मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पे जो मूड है ये मूड को परिवर्तन कर देता है, टोटली चेंज कर देता है। ये मोड ऑफ एन एक्शन है, राइट। मॉडल एक्सुलरी वर्ब इज दैट व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द मोड ऑफ एन एक्शन।
यानी कि एक्शन का जो मोड है उसको डायरेक्टली बदल देता है। अगर मैं यहां लगा देता हूं आई मस्ट गो, अब इसका मोड क्या कहने लगा कि मुझे अवश्य जाना चाहिए। अगर मैं लगाता हूं आई शुड गो, अब क्या हो जाता है कि मुझे जाना चाहिए। तो आई शैल गो, आई मे गो, आई मस्ट गो, आई शुड गो। हमने चार सेंटेंसेस में देखा, चारों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पुट किया है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि मॉडल मोड ऑफ एन एक्शंस को शो कर रहा है कि इनका मूड अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजों को बता रहा है। सिंपल वे में जानेंगे कि modal auxiliary verb is that auxiliary verb which is used to change the mode of an action, that is called modal auxiliary verb। हमने इसको दो तरीके से बताया, एक बताया modal auxiliary verb और सेकेंड वे में बताया marginal modal verb, जिसमें need और dare होता है। need का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक मॉडल वर्ब के अनुसार से, दूसरा होता है मेन वर्ब के अनुसार से। ठीक उसी प्रकार से डेयर का भी करेंगे। जैसे नीड मतलब नाने की जरूरत होना और डेयर का मतलब नाने को हिम्मत करना और साहस करना। जस्ट लाइक ओके वी मे टेक एन एग्जांपल, सी दे मस्ट पास their examination, right? their examination, got it? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मस्ट लगा है वो आपका है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसका मीनिंग को, मोड ऑफ एन एक्शन को चेंज कर रहा है। वी मे आस्क अ क्वेश्चन, राइट? वी मे आस्क अ क्वेश्चन, दे विल कम टू प्ले अ स्नैक एंड ladder game, right? He must play chess, right? He must play chess. So we have seen must, may, will, must. So these all are the modal auxiliary verb जो मोड ऑफ एन एक्शन को चेंज करता है, जो एक्शन करने की प्रवृत्ति की उसकी मूड को बदलता है, इसी को कहते हैं मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इन सारे चैप्टर्स में, वर्ब वाले चैप्टर में, कि वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार का होता है, और वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। हमने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इट मींस आई हैव कंप्लीटेड ऑल द कंसेप्ट ऑफ द वर्ब regarding the verb. Whatever the problem is there, I just try to complete all the things. So I hope that you will get this video in proper way and you will study and just learn so many things, and it will just help you, it will help to influence in your English languages. So I hope that you will just like and share. तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अवश्य रूप से पढ़ें। थैंक यू।